हेलो हेलो सर, किसी को कोई डाउट नहीं है ना फिर? No. Okay, so let's go ahead then. Then, okay, what was that? Stop video. Yeah. So this part, now you understood this paragraph? Now this is a very good question. sir. This is a very good question. They are saying that what will be the general formula for the molecular formula of members of homologous series of alkenes? This is a very good question. So they are saying that अगर alkene का molecular formula है CnH2n, यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन या जितना हाइड्रोजन उसका हाफ कार्बन, तो फिर alkenes का molecular formula क्या होगा? तो I am going back to homologous series. This is my homologous series and this is the molecular formula. I hope you all can see, right? Guys, Yes. you all can see the Yes, sir. right? Now I want some to tell me what will be the general formula for alkenes. अगर मुझे इसका general formula, are you able to find any pattern in the general formula? Like, see this, see the number of carbon and see the number of hydrogen. See the number of carbon and see the number of hydrogen. See the number of carbon and see the number of hydrogen. Is there any molecular formula that we can make for homologous series of alkane? See, there are 2 carbons and then there are 6 hydrogen. There are 3 carbons and 8 hydrogen. There are 4 carbons and 10 hydrogen, 5 carbons and 12 hydrogen, 6 carbon and 7 hydrogen. Tell me. Guys, थोड़ा फटाक से बताओ यार, बहुत इजी है ये तो. Yes. What is the general formula? अगर जनरल फॉर्मूला एल्केन का बनाना हो तो क्या बनाएंगे बताओ? जो बताएगा ना उसका पनिशमेंट खत्म हो जाएगा. जाओ, जो 10 टाइम्स लिखने का दिया है ना मैंने यहाँ पे, कौन कौन है, किसका किसका नाम है, केन, जॉनिसा, यश, शाहरुख, काजल एंड नीम, इनमें से जो भी बताएगा उसका पनिशमेंट नहीं रहेगा. एंड जो नहीं बताएगा, मतलब ऑब्वियसली जो नहीं बताएगा उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं. बट हाँ, अगर जिनका पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे, जिनका नाम नहीं है यहाँ पे, अगर उन्होंने भी आंसर बता दिया तो उनको नेक्स्ट टाइम एक डिस्काउंट मिलेगा मेरे तरफ से. टेल मी द molecular form, like general formula for alkanes, homologous series of alkanes. तो पैटर्न नहीं मिल रहा है तुमको? नंबर को n मानो तो ये क्या है? What is the pattern that you are able to find? It's 44 now. I will wait till 46 and I want an answer. It is already 45. So I will wait till 47. Tell me the answer, guys. Sir, Yeah, tell me. sir, CnH2n -2. Okay, -2. तो एक काम करते हैं, रख के देखते हैं, ठीक है? If there are 2 carbons, it means Cn means n is equal to 2. So what will be H? H will be 2n -2. That is 2 into 2, 4, -2 will be 2. But here H is 6, right? ये फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि if you put n is equal to 3, 2n -2 is not equal to 8, right? Yes. तो फिर कोई सुटेबल फॉर्मूला निकालो कि अगर यहाँ पे n रखे तो यहाँ पे वो फॉर्मूले से नंबर आ जाए. See, if you will notice, they are following one trend. एक पैटर्न तो है इनके नंबर्स में. अगर ये 4 है तो ये 10 है. अगर ये 5 है तो ये 12 है. अगर ये 6 है तो उसका डबल प्लस 2 है. अरे यार, आंसर बता दिया. अभी बताओ कोई फटाक से. सर प्लस आएगा माइनस की जगह. कौन बोला ये? नहीं, इधर ही आपने बोला ना अभी. हाँ, लेकिन कौन, नाम क्या है भाई? मतलब मेरे को आवाज से कैसे नाम? Irish. Irish. So Irish, very good. Your answer is correct. But I can see that you are not having any punishment. So you will get one bonus from me. Don't worry. Let me
Irish is having bonus. So you can choose not to answer at one time only, and I will not give you any punishment. So Irish, your answer is correct. If you will put Yes, sir. carbon as N, if you see about this C2H6, so अगर molecular formula मेरा होगा CnH2n plus 2, then if N is equal to 2, 2n plus 2, it means 2 into 2 plus 2. So 2 is equal to 4, and 4 plus 2 is 6. So this is like suitable on that. Let's try on this. Is it also following the same trend? CnH2n plus 2 is the molecular formula. So if N is 3, 2n plus 3, that is 2 into 3 plus 2, that is 6 plus 2 is 8. So this is also correct, right? Guys, समझ में आया सबको? Are you able to understand what I'm saying? हाँ सर Yes. समझ में आया Yes, sir. 2 प्लस सब में 2 प्लस है Everyone give a huge round of applause for Irish. आवाज इधर आना चाहिए. हाँ, माइक अनम्यूट करें. Okay, very good. Now let's go ahead then. Irish आ गई. Okay, Lean has entered the classroom. So the answer of this question, like a general formula for molecular formula of members of homologous series of alkanes will be 2n plus 2. And for alkynes, it is written here 2n minus 2. Okay? Okay. So let's go ahead. And now see nomenclature. Nomenclature means namankaran. How to name the carbon compounds. What is the pattern to name any molecules? So let's see. First point, system of common names. We have seen that today millions of carbon compounds are known. Initially, when the number of known carbon compounds was small, scientists named them in a variety of ways. Now those names are called common names. Can someone give an example of common name? Guys, can someone tell me one common name for carbon compounds? Parent. Tell me. मेडिसिन Medicine. अरे यार. Parent. कोई और कुछ तो बोल रहा है. What was that? Parent. Parent. No. I am asking you for one common name. One common name for carbon compound. Any carbon compound. किसी भी एक carbon compound का common name बता दो. चलो. Five, four, three, two, 1, 0. Oh my God. अरे ये methane, ethane, propane, butane. These all are common name only. I have told many times. Molecular formula is CH4 and common name is methane. So these all are common names of those molecules. Understood? Okay. यस सर The names of Yes, the sir. Yes, sir. names of the alkanes thereafter were given from number of carbon atoms in them. तो पहले क्या था, बहुत कम molecules थे, like there were very few molecules, so they gave them a common name. Okay, but then what happened? Then they realized that there are many number of carbon atoms they are appearing. So two isomeric compound having a straight chain or branch chain in the structural formula are possible for the molecular formula C4H10. Now we have seen this right in the chain when we are learning about chain. Wait, I will show you. Yeah, see this. This both molecules will have same molecular formula, right? C4 and H10. Am I correct? But they cannot name it as the same way, right? They must be named in a different way. तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में एलिमेंट्स कम थे तो उन्होंने कॉमन नेम दे दिया. फिर जब देखा बहुत सारे एलिमेंट्स है तब से दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वन रूल, एक लॉ क्रिएट करने के लिए. दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ टू क्रिएट अ लॉ so that the naming becomes easy. So let's go ahead and see what that law was. So they were saying two isomeric compounds having a straight chain or branch chain in the structural formula are possible for the molecular formula C4H10. The difference and interrelation in them was indicated by naming them as N-butane. N-butane means normal butane. Normal butane means straight chain का बात हो रहा है. And I-butane. I-butane means isobutane.
Isobutane means it is a branched chain. Okay. Okay. Then comes the IUPAC nomenclature system. Now this is the most international, most famous and widely recognized method of naming the compounds. Okay, so let's see what is the full form of IUPAC. Very important. International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC put forth a nomenclature. Nomenclature means a set of rules, system based on the structure of compound, and it was accepted all over the world. There is a provision in this system for Yes. giving name. So they made a law to give unique name to all the carbon compounds. So let us see how some straight chain compounds containing one functional group are given IUPAC name, and let us also see their common names. Now there are 3 units in IUPAC name. IUPAC name देते वक्त आपको 3 units का ध्यान रखना है. One is parent, other is suffix. Suffix means the one is appearing as last, and the one more is prefix. So prefix will come before parent and suffix will come after parents. So let's read in detail. It is saying that an IUPAC name is given to a compound on the basis of the name of its parent alkane. तो जो parent alkane होता है उसके basis पे naming करते हैं IUPAC में. The name of the compound is constructed by attaching appropriate suffix and prefix to the name of the parent alkane. Now there are some steps specified that there are some steps in IUPAC nomenclature. It means IUPAC set of rules of a straight chain compounds are as follows. So let's go in detail. It is saying that draw the structural formula of the straight chain compound and count the number of carbon atoms in it. The alkane with the same number of carbon atoms is the parent alkane of the concerned compound. Then it is saying write the name of this alkane in case the carbon chain of the concerned compound contains a double bond. Change the ending of the parent name from N to in. Don't worry, समझाता हूँ मैं ये भी. If the carbon chain in the concerned compound contains a triple bond, change the ending name from N to in. So let's understand what they are trying to say. See, this is an alkene, right? Carbon are having single bond, and there are 3 carbons. So 3 carbons will become prop. Prop is the word. And propane. Propane, why? Because they are having single bond. Similarly, there are two carbon atoms, right? This molecule. So this is in that straight chain में 2 carbon atoms है. So they are an example of ethane. Not completely ethane. They are not ethane, but they are having 2 molecules, 2 carbon, and 2 carbon is found in ethane. We are talking about parent name now. Here we are having 3 carbon atoms in this. So 3 carbon atoms are having single bond. So they will become propane. And here if you will see in this series, we are having 4 carbon atoms. So 4 carbon atoms, they will be having butane. वो ऊपर टेबल में नाम था वो ध्यान में रखना वरना भूल जाओगे तो फिर कहोगे मैंने नहीं बताया. Then in this molecule if you will see, there is 3 carbon atom. But if you will notice here, the 3 carbon atom also has a double bond. So the name will be still prop, but N will change to ine. So it becomes propene. Did you understand? And when there are 3 bond, like 3 triple bond between carbon atom, propene will change to propine. So if you will notice, this is propane because all are single bonded. This is propene because these are double bonded, and this is propine because this is triple bonded. That is what we were trying to say here. If you will read this sentence, they are saying write the name of this alkane in case the carbon chain of the concerned compound contains a double bond, change the ending of parent name from N to in. That is what they have done. Propane becomes propine. Why? Because carbon is having double bond. And if there is a triple bond, change the ending of the parent name from N to ine. Now here also we have 3 carbon atom, but here is a triple bond. So propane becomes propine. Did you understand this? Yes. And this was a step.
Let's see what is there in step 2. Step 2 पढ़ते हैं. It is saying that if the structural formula contains a functional group. Functional group क्या क्या होते हैं कोई बताओ फटाफट. Someone tell me. Can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Switch on your videos. Yes, sir. Switch on your videos. Each one of you each one of you have to name one functional group. Each one of you. जो पहले बोलेगा वो बचेगा, जो लास्ट में बचेगा, and you need not repeat. तुमको repeat नहीं करना है. And each one of you have to name one functional group, and the game starts now. So yeah, anyone having any name for functional group? कोई बताओ मुझे functional group के नाम. Tell me, guys. No one knows any functional group. What about you, Kane, who are looking at the screen? I'm talking about functional group. पढ़ाया था ना, ऊपर टेबल में है उसी चैप्टर में. Sir, alcohol. Very good. Who said that? Rian. Okay, Rian या Ryan? Rian. Rian. Okay. So Rian, good. Alcohol. I need few more. Ether. Very Sir, good. hydroxyl. What? Hydroxyl. Ester. Hydroxyl. Very good. Hydroxyl ester. Amine. Amine. Very good. Ester. Very good. Aldehyde. Carboxylic Aldehyde. acid. Aldehyde. Carboxylic Amino. acid. Keton. Amino. Ketone. Ketone, not Ketone. 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 Good. Amines. Amines. It is amines. Okay. Amines. See. Hello. Amines, carboxylic acid, alcohol, chlorine, bromine, iodine, ether, ester. These all are functional groups. Hello. Okay. Sorry. Someone is saying some name. Hello. Hello. Okay, that is halogen. That is not halo. They have just written the abbreviation of halogen. That is halo. But it is chlorine, bromine, iodine. This all would be the proper name. Okay. Yes. Let's go ahead then. Let's see what else we have here. So it is saying that if the structural formula contains a functional group, replace the last letter E from the parent name by condensed name of functional group as suffix. Exceptions, the condensed name of functional group halogen is always attached as prefix. देखो वो क्या बोल रहा है, सिंपल सा मैं हिंदी में बताता हूँ. ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर कभी भी फंक्शनल ग्रुप देखो ना, तो लास्ट में जो ई है ना, ई हटा के उसका नाम लगा दो जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है, और सफिक्स पे लगाओ, यानी पीछे लगाना. लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर फंक्शनल ग्रुप हैलोजन रहा तो उसका नाम प्रीफिक्स में आएगा, आगे में आएगा. सिंपल सा है, समझ में आया? इसका एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा. देखो, दे आर सेइंग दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन फ्रॉम वन इनटू अनदर, असाइन द नंबर 1 टू कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप. जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे ये CH, ये एल्डिहाइड है, ये CO2H है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को नंबर 1 कर दो, उसको वहां से काउंटिंग स्टार्ट करो. एंड इफ प्रेजेंट, अदरवाइज द चैन कैन बी नंबर्ड इन 2 डायरेक्शन. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है तो तुम उसको किसी भी डायरेक्शन में नंबरिंग कर सकते हो. और एक्सेप्ट कर लो दैट जिस भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आ जाए काउंटिंग में. ठीक है, ये सब तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एग्जांपल बताऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा. वो कह रहा है कि तुम काउंटिंग ऐसा चालू करो कि कम से कम कार्बन का यूज करके तुम फंक्शनल ग्रुप के पास पहुंच पाओ, और फाइनल नेम एक डिजिट एंड एक कैरेक्टर शुड बी सेपरेटेड बाय स्मॉल. अरे यार, ये देखो दिखाता हूं, एग्जांपल बताता हूँ. ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे सबको? ध्यान से देखना. हियर वी आर हैविंग 2 कार्बन, राइट? हाँ ना बोलो फटाफट. 2 कार्बन मतलब इथेन का बात, इथेन. एंड देन वी आर हैविंग
इथेन के बाद if you will see we are having OH. OH means alcohol. So what it will Alcohol. become? All group. All होता है ना, तो इसका नाम क्या बन गया? इथेनॉल. देखो सफिक्स में नेम लगा है. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप है तो सफिक्स में लगाएंगे एक्सेप्ट हैलोजेंस. अब ये देखो, ये भी 2 कार्बन है बट यहाँ पे क्लोरीन है, तो उसने क्या बोला था? एक्सेप्शन क्या है? अगर हैलोजेंस रहे तो नाम आगे आएगा. तो 2 कार्बन है इसलिए इथेन, बट हैलोजन है तो क्लोरो इथेन बन गया है. समझ में आया? वैसे ही Br2CH2, यहाँ पे भी 2 कार्बन है. 2 कार्बन मतलब इथेन, लेकिन Br क्या हो गया? ब्रोमो ग्रुप हो गया. तो नेम जनरली ब्रोमोइथेन. लेकिन हैलोजेंस है तो नाम आगे आ जाएगा. ठीक है. Yes. Then we are having 3 carbons here. If you will see 3 carbons का नेम क्या होता है? पेरेंट नेम प्रोपेन. बट इसका क्या Propane. होता है? इसका कंडेंस नेम क्या है? मेन नेम अल. See the difference. This is all. This is al because it is aldehyde, and this is alcohol. So it is having all, and this is aldehyde. So it is having al. So propane, and since this is not a halogen, right? So the name will be added in the suffix. So it will become propanol. Propanol. Understood? Now see similarly, Yes, sir. Yes, sir. 2 carbon atoms. 2 carbon atoms means parent name what it will become? Ethane. But this is Ethane. carboxylic acid. Carboxylic acid का suffix क्या होता है? Oic acid. तो इथेन में E को हटा के oic acid लगा दो तो क्या नेम हो गया? इथेनोइक एसिड. Understood? Ethanoic. Yes. Similarly here, 1 carbon atom. 1 carbon atom means methane. But what we are having, what is the functional group? NH2. NH2 called as amine. So this is not a chlorine, bromine, iodine and all, right? This is not a halogen. So यहाँ पे suffix में E हटा के ये वाला नाम लगा दो तो ये बन जाएगा methanamine. Now see this one, CH3, CO, CH3. Now there are 3 carbons. It means they are talking about propane. But this is C double bond O. It means ketone का बात हो रहा है. So since this is not a halogen group, right? So halogen group नहीं है तो नाम prefix में आएगा, sorry, suffix में आएगा, यानी लास्ट में आएगा. तो ये बन गया propanol. Understood? Yes, sir. Very good. Now see, they are showing one naming. वो क्या बोलना चाह रहे थे वो बता रहा हूँ मैं. देखो ये कार्बन एटम्स है ना, ये 5 कार्बन एटम है. क्लोरीन किस में लगा है? ये वाले कार्बन पे लगा है. So they were saying that when there is no carboxylic acid, no aldehyde, so you can start naming from any side, but you have to name in such a way that this group should be present. मतलब अगर तुम इधर से चलोगे तो 1, 2, 3, 4, 4th कार्बन एटम पे क्लोरीन लगाएगा. बट तुम अगर इधर से चलोगे तो 2nd कार्बन एटम पे क्लोरीन लगाएगा. तो काउंटिंग तुमको हमेशा उसी साइड से स्टार्ट करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जल्दी पहुंच जाओ. तो इसका नाम इसलिए होता है 2 और फिर क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन क्या होता है? हैलोजन. तो हैलोजन में नाम क्या आएगा? पहले तो 2 क्लोरो और कितने कार्बन है? 5 कार्बन. तो 2 क्लोरो पेंटेन. Pentane. Understood? Yes, sir. Similar is the case here. Yes, sir. There are 5 carbon atoms. We can start the counting from here. यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बट IUPAC क्या बोलता है कि काउंटिंग उस साइड से चालू करो जिस साइड से तुम जल्दी पहुंच जाओ. इस साइड से जल्दी पहुंचोगे क्योंकि यहाँ पे तो 2nd नंबर पे आ जाओगे, और यहाँ पे तो 1st कार्बन एटम, फिर 2nd कार्बन एटम, फिर 3rd कार्बन एटम, फिर 4th कार्बन एटम. ये डायग्राम उन्होंने गलत बनाया है. ये SSC वाले गधे हैं. ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हाँ. कार्बन के पास 2 बॉन्ड भी है ना. हाँ. तो 4 बॉन्ड तो ऐसे ही हो गए. तो ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन का क्या अपने सर पे लगाए वो लोग? ये लोग गधे. ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ना, वो ये वाले कार्बन पे आना चाहिए, क्योंकि देखो ये कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है ना. समझ रहे हो तुम लोग ये डायग्राम में क्या मिस्टेक है? देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे इन्होंने इसको ठीक कर दिया है. यहाँ पे इस वाले कार्बन पे लगा के बच गए. वहां पे देखो 6 बॉन्ड बना दिए कार्बन के. ऐसा होता नहीं है, डायग्राम गलत है. ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, वो ये वाले कार्बन पे आना चाहिए. समझ में आ गया सबको क्या मिस्टेक है? हाँ. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. So they are saying some more steps are required for writing IUPAC names of compound having more complex structure. हाँ,
ये तुम्हारे काम का नहीं है। बोल रहा है कि अगर 5-6 ग्रुप एक साथ डाल दिए तो क्या करोगे? क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अभी 10th में हम अभी कुछ नहीं करेंगे, जब आगे चल के साइंस लेंगे तब करेंगे, ठीक है? टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। अब इसका तुम IUPAC नेम आज सब कोई मुझे लिख के व्हाट्सएप पे फोटो भेजोगे, ये होमवर्क है तुम्हारा, याद रखना। इन सब का IUPAC नेम लिखना है तुमको ध्यान से। देखो सिंपल है, 2 कार्बन एटम है ना, और डबल बॉन्ड है। 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो कोई प्रीफिक्स सफिक्स लगेगा भी नहीं। यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथेन तो ऐसे हो गया क्योंकि 2 कार्बन एटम है, बट ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Is everyone able to understand what I am saying? अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, नहीं मैं दोबारा समझा दूंगा। ऐसे चुप तो मत रहो तुम लोग, जिंदा भी हो कि नहीं हो तुम लोग गाइस? सर वापस समझाओ ना। हाँ तो बोलो ना, ऐसा मुझे बोलोगे नहीं तो पैसे। देखो 2 कार्बन एटम है ना, 2 कार्बन एटम मतलब हाँ। इथेन का बात हो रहा है। अब इथेन बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसका नेम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। इथीन। यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम ही है, बट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथेन का क्या हो जाएगा? इथाइन। समझ में आया? हाँ सर। हाँ अभी देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम है और एक अल्कोहल ग्रुप है, तो कार्बन एटम का क्या हो गया? मीथेन। और अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल। और अल्कोहल ग्रुप ऑल। सिर्फ हैलोजेंस जो होते हैं वो आगे आते हैं, बाकी सब पीछे आएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ये देखो 2 कार्बन Yes, एटम, 2 कार्बन एटम मतलब इथेन, बट यहाँ पे क्या लगा है? OH ग्रुप। OH ग्रुप मतलब अल्कोहल। अल्कोहल मतलब ऑल लगेगा, आगे लगेगा या पीछे लगेगा? तो आगे तो तभी लगता है जब हैलोजेंस होते हैं, यानी ये पीछे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ओके। वैसे ही यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये OH ग्रुप नहीं है, ये CHO ग्रुप है, यानी ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। NaL। समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। एक yes, काम करता हूँ, तुम लोग को एक वीडियो डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाओ, तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है? 1 सेकंड रुक जाओ। IUPAC नेमिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 33 मिनट का है, ज्यादा डिटेल में पढ़ लोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि IUPAC बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये शायद थोड़ा ठीक है, रुको देखे। हाँ ये वाला मस्त है, इजी है ये भी भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, बेकार है, बहुत टफ है, इतना हाई लेवल का चाहिए नहीं तुम लोग को। ये देखो मुझे ठीक लग रहा है वैसे, प्रोफेसर डेव नाम है इसका। अरे भाई ये और पागल बना रहा है। उसका इंग्लिश बहुत हाई लेवल का है। तुमको कैसे पता? अंग्रेजी इंग्लिश है। इंट्रोडक्शन टू IUPAC, अरे ये पढ़ाएंगे क्या अपने को? अच्छा मिस जैन, नहीं यार ये भी गड़बड़ है, कहीं पे है ही नहीं, है ही नहीं। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, तुम प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, ठीक है? डोंट वरी। ओके सो लेट्स गो अहेड। ये समझ में आया सबको? IUPAC ये वाला क्वेश्चन करके आना, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना मेरे से, मैं बता दूंगा। ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये करके आना, ठीक है? ओके हाँ सर। अभी देखो, अभी अगला क्या है? अभी केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन वगैरह होगा तो क्या होगा? अब इस पे बहुत सिंपल चीज है। कार्बन, अगर सिर्फ कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और लाइट प्रोड्यूस होगा। अगर मीथेन को यानी CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और लाइट प्रोड्यूस होगा। अगर इथेनॉल को, इथेनॉल देखो ये इथेनॉल है, कैसे? क्योंकि 2 कार्बन एटम है और अल्कोहल ग्रुप है, तो 2 कार्बन एटम के कारण नाम क्या हो गया? इथेन।
और अल्कोहल है तो ऑल ग्रुप, यहाँ पे इसका नाम हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ये जो 2 और 3 आ रहा है ना आगे में, इसका टेंशन मत लो, ये केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो क्या बोल रहा है, प्रोपेन C3H8 इज वन ऑफ द कंब्यूशिबल कंपोनेंट ऑफ LPG। बोल रहा है कि प्रोपेन जो है वो LPG में होता है, तो उसका रिएक्शन लिख दो। तो रिएक्शन लिख दो, फिर करना क्या है, 3 कार्बन बना दो, C3CH। देखो तुमको दिखाई देते हैं यार, फिर तुम गाली दोगे बाद में। ये देखो ध्यान से, दिखा रहा हूँ, इधर गया ड्रॉ। हाँ दिख रहा है सबको ना। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा तिरछा मिर्चा है, बट like it is not straight, but please manage. C3 and H8, can you see this? So 3 carbons are there, 3 carbons are there. Let's attach hydrogen. So carbon will only make 4 bonds. So 1 hydrogen will come here, 1 hydrogen will come here, and 1 hydrogen, 3 hydrogen will come at this carbon. Am I correct guys? टोटल कितने थे 8, टोटल कितने थे 8, यूज कितने कर लिए 6, तो 2 बचा, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इफ यू विल सी आई हैव 3 कार्बन्स एंड आई आल्सो हैव यूज्ड 8 हाइड्रोजन्स, एंड यू विल सी दैट ईच ऑफ द कार्बन आर हैविंग 4 बॉन्ड्स। ना किसी ने 3 बॉन्ड्स बनाए, ना किसी ने 5, हमेशा 4 बॉन्ड्स। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अंडरस्टूड? अब ये ट्राई दिस वगैरह तुम करते रहो अपने स्कूल के लैब में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गुड। फिर उसके बाद क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक। यार ये चैप्टर तो काफी बड़ा है, पॉलीमर्स एंड ऑल। बहुत बड़ा है सर। कोई नहीं कर लेंगे कंप्लीट, इस वीक तो हो ही जाएगा। तुम लोग खाली टाइम से रिवीजन करते रहो, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे। तुमको ये रिएक्शन करने का बैलेंस बता दूं क्या? बता दो। बताता हूँ। ऐड पेज, ये देखो ये रिएक्शन दिख रहा है, अरे क्या घटिया है यार, इसको जैसे आना चाहिए था वैसा आया ही नहीं यहाँ पे। चलो मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 into 2 4 हो गए। अरे 2H2 है ना, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, और 2H2O मतलब H2O क्या होता है पता है? ये वाटर। वेरी गुड। So H2O is water and 2H2O means 2 molecules of water. 2 molecules of water मतलब 2 into 2 is equal to 4. टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। टोटल ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 2 into 2 4, तो यहाँ पे भी 4 और वहां पे भी 4। समझ में आया? यहाँ पे कितना कार्बन है 1, यहाँ पे कितना कार्बन है 1, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस रिएक्शन। समझ में आया? हाँ सर। हाँ अभी यहाँ पे देखो 2 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे तो 6 हो गया 3O2 के कारण, 3 into 2 6, और ये वाला एक ऑक्सीजन कितना हो गया 7। तो यहाँ पे कितना है देखो 2 into 2 यहाँ का हो गया 4, और 3 यहाँ का हो गया 3H2 है ना, तो ऑक्सीजन तो एक ही है बट मॉलिक्यूल 3 है, तो 3 प्लस यहाँ का 4 और यहाँ का 3, टोटल कितना हो गया 7। तो 7 ऑक्सीजन का एटम्स इस साइड भी, 7 ऑक्सीजन का एटम इस साइड भी, तो ये भी रिएक्शन हो गया बैलेंस। समझ में आया? ये बाकी लोग क्यों ऐसा मुंह लटका के बैठे हैं? जरा अपना चेहरा दिखाओ सब। यार ये 80 पार्टिसिपेंट्स है, टोटल 10th है, क्या प्रेरणा सब भाग क्यों गए? डोंट नो, क्या पता। यश, अरे यार बहुत सारे लोग नहीं है, कैवल ने चला गया और कीन भी चला गया,
क्या कुछ क्रिकेट मैच है क्या तुम लोग का उधर? संडे को प्रेयर वगैरह में जाना है क्या? अभी तक जो समझाया वो समझ में आया? माइक अनम्यूट करो हाँ सब। सर। Yes. हाँ sir. सर। पक्का? यस सर। जॉल्स यस। हाँ सर। तुम बोला करो, खाली डीपी हाँ लगा हाँ के सर। रखा है वो। इसने कैसा लगा के रखा है प्रोफाइल पिक पता है? जूम पे वो लायन है और लायन के ऊपर ऐसा क्राउन, तो लायन है तो फिर बोलना भी पड़ेगा ना, इनिशिएटिव भी उस हिसाब से लो। ऐसे तुम क्लास में चुप बैठोगे? ये प्राचीन ने अपना माइक क्यों म्यूट करके रखा है? सर हेलो। तुम लोग पक गए हो क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। मेरी नेट थोड़ी सी स्लो है, इसलिए मेरी थोड़ा या सा मेरा? प्रॉब्लम। मेरा मेरा तो मेरा बोलो फिर वाईफाई यार, तुम वाईफाई। डाउट में डाल रहे हो तुम हम लोग को। मेरी नहीं बोल नहीं। रहे हो फिर? चलो ठीक है, एक काम करो, जो भी आज पढ़ा है घर जाओ, अच्छे से रिवीजन करो ध्यान से। और हाँ IUPAC let me tell you, IUPAC nomenclature is very important. You have to understand it. तुमको डिटेल में नहीं आना चाहिए वो, आई एग्री दैट, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट तुमको ये तो आना चाहिए कि कितने कार्बन है वो काउंट कर लो, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। देखो सिंपल सा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसा करके नाम है उसका, ठीक है। और ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कब आएगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसा आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ऐसा आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और क्या कॉन्सेप्ट है IUPAC का कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो हैलोजन ग्रुप वाले हैं, तो इनका अगर नेमिंग करना है तो ये प्रीफिक्स में आएगा, यानी जो IUPAC जो नेम है स्टार्टिंग में आएगा। ब्यूटेन उनके पहले आ जाएगा, ठीक है। बट अगर बाकी जो भी है, अल्कोहल का ऑल है, एल्डिहाइड का अल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड है, और क्या कीटोन का ओन है, NH2 का एमाइन है, ये सब जो है वो सफिक्स में आएगा, यानी लास्ट में आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार जाओ, अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। Like please try to solve all those 10 questions of IUPAC, and I'm telling you, like if you will solve it, it will be better for you only. You will understand it more. And let me tell you बहुत फटाफट से कि घर पे जाना, रिवीजन करना, यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है। मैं भी देख रहा हूँ तुम लोग काफी थक गए हो, and I don't want you to exhaust and study. Okay, I want you to study and enjoy it at the same time. So don't worry, the class will get over now. Bye bye, take care, revise the concept and come tomorrow. और जिनको लिखने के लिए दिया है, जॉनी साहब उनको भी दिया, तो तुम सब लोग याद करके आओ, रिवाइज करके आओ, वरना कल वापस से मैं रोज तो पूछने वाला हूँ। अभी रोज क्लास है ना, पता है ना, व्हाट्सएप में मैसेज डाला मैंने ग्रुप में। तो बाय एवरीवन, टेक केयर। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी टुमारो। Yes. sir. Thank you, sir. Bye. वेलकम, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय।